پروگرام KNI میں آپ کا میزبان افتخاری بٹی آپ کی خدمت حاضر ہے. آپ موجود ہیں ریلوے لوگو شیڈ کالونی کے اندر. وارڈ نمبر 1 ہے. یہاں کے جو یونین کے عہدیداران ہیں وہ بھی موجود ہیں. یہاں کے مسائل کیا ہیں اس کے بارے میں آگاہ کریں گے. پوچھتے ہیں کہ کیا مسائل. جی السلام علیکم. جی میں مبارک حسین, مرکزی سیکرٹری انفارمیشن ریلوے ورکر یونین تارا نشان پاکستان. میں سب سے پہلے تو کنوٹ ٹی وی چینل کو ریلوے کالونیوں کے مسائل اجاگر کرنے کے سلسلے میں جو یہ ٹیم آئی ہے اس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, اور یہاں کے اہلیان علاقہ کی طرف سے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مثبت قدم اٹھایا ہے اور اس پریشان کن صورتحال میں جو ریلوے ملازمین موجود ہیں ان سے آگاہی حاصل کی ہے. میں سب سے پہلے ریلوے کی یہ جس کالونی میں آپ کھڑے ہوئے ہیں یہ ریلوے لوکو شیڈ کالونی کہلاتی ہے. یہ اگر کنٹونمنٹ بورڈ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ وارڈ 2 ہے, اور UC کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ UC 1 ہے. حلقہ NA 60 ہے, اور PP 14 کے عمر تنویر بٹ صاحب MPA اور عامر کیانی صاحب جو ہیں وہ اس وقت موجودہ MNA تھے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی کوئی جیت کر یہاں سے ووٹ لے کر جاتا ہے اس کے بعد وہ جا کے سو جاتا ہے. وہ عامر کیانی ہو, وہ عمر تنویر بٹ ہو, سابقہ دور میں شیخ رشید احمد اور ملک شکیل اوان صاحب نے یہاں پر بہت سارے تعمیراتی کام کرائے, اور ذہن اجاز صاحب نے بھی کچھ کام جونتے ہیں جبکہ وہ ابھی کوئی کسی عہدے پر فائز نہیں تھے, لیکن انہوں نے یہاں پر جو کام کیے ہیں اس سے کچھ مثبت فائدے ہوئے ہیں. لیکن آج جو گرمیوں کے اندر صورتحال ہے اس میں 6 عام مسائل کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا. اس میں سب سے سنگین, پیچیدہ, پریشان کن مسئلہ جو ہے وہ پانی کا مسئلہ ہے. پانی کے مسئلے کی وجہ سے آج ہماری مائیں, بہنیں, بیٹیاں در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں. میرے یہ نوجوان ساتھی جو کام روزگار کی تلاش میں گھر سے باہر جانے چاہیے آج کل پانی کی تلاش میں باہر جاتے ہیں. دوسری خرابی گیس کی ہے, اور گیس یہاں صرف صبح 2 گھنٹے آتی ہے, 7 سے 9, دن کو 12 سے 1 اور شام کو 7 سے 8, اور اس کے بعد یہاں سے چھٹی ہو جاتی ہے. GM سوئی گیس کو بھی اس چیز سے آگاہ کیا ہے, میڈیا نے بھی اس چیز سے بھی آگاہی حاصل کی اور انہیں بتایا ہے. لیکن الحمدللہ GM صاحب 70 لاکھ روپیہ تنخواہ لیتے ہیں, لیکن وہ روز کا GM بن کر, سوئی گیس کے GM کی میں بات کر رہا ہوں, وہ 70 روپے کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں. یہاں پر گیس کی لیکیج ہے, پائپ جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں, اور اگر آپ وہاں گیس کی صورتحال دیکھیں تو میٹروں کو ایک ہی لائن میں 8 میٹر لگے ہوئے ہیں, اور کسی گھر کو یہ نہیں پتا کہ ان کا میٹر کون سا ہے. اور اس چکر میں گیس کا ادارہ جو ہے کئی بار غلط میٹر کاٹ گیا ہے, کیونکہ بل جس نے جمع کرایا اس کا میٹر کٹ گیا اور جس نے نہیں جمع کرایا اس کا میٹر بحال تھا. یہ خوبصورت سی بات جو ہے وہ میں نے کچھ زعفران آپ کو دیا. تیسری جو گزارش ہے وہ ہے بجلی کی. یہ وہ بجلی ہے جس کے بل ایک جگہ سے نہیں 2 طرف سے ریلوے والے دے رہے ہیں, اور خصوصاً لوکو شیڈ والے. وابڈا والے اپنا بل بھیجتے ہیں وہ بھی ہم دے رہے ہیں, اور ریلوے والے اپنا بجلی کا بل بھیجتے ہیں وہ بھی ہم دے رہے ہیں. اور بجلی اگر یہ کہیں تو نہ وہ بجلی دے رہے ہیں نہ یہ بجلی دے رہے ہیں. کل 3 گھنٹے مسلسل بجلی جا رہی ہے. لوگوں کے فریج تباہ و برباد ہوئے ہیں, لوگوں کی واشنگ مشینوں کا کھانا خراب کیا ہے, لوگوں نے ٹی وی اور LCD جو سے ہیں وہ بجلی کی بار کی بندش کی وجہ سے وہ سارے سڑ گئے ہیں, جل گئے ہیں. اور سب سے زیادہ خرابی جو ہوئی ہے وہ فریج کی ہوئی ہے, اور آج فریجوں کا جو برا حال ہے اس گرمی کے اندر وہ کولنگ نہیں کر رہے. دوسرا بجلی کا جو زور ہے, یعنی جتنی ہمیں 220 ملنی چاہیے وہ 130, 160, 170 سے زیادہ نہیں ہے. اسٹیبلائزر لگا کر اگر وہ فریج اور ٹی وی چلتے ہیں تو وہ بڑی مشکل سے چلتے ہیں. لوڈ شیڈنگ کا یہاں کوئی دورانیہ نہیں, یہاں کوئی پتہ نہیں کہ بجلی کس وقت جائے گی, کوئی شیڈول نہیں ہے, کوئی طریقہ کار نہیں ہے. 4 گھنٹے ہو, 6 گھنٹے ہو. ہمیں ڈویژنل الیکٹریکل انجینئر امتیاز صاحب کو بھی آگاہ کرتے ہیں, عامر صاحب کو بھی آگاہ کرتے ہیں, اور اپنے محترم DS انعام اللہ مسعود صاحب کو بھی آگاہ کرتے ہیں کہ جناب 3 گھنٹے سے میری مائیں, بہنیں, بیٹیاں ننگے سر ننگے پاؤں پانی کا ماتم کرتی ہیں, گیس کا ماتم کرتے ہیں. آپ کی یہاں پر موجودگی کے باوجود اگر پانی نہیں آ رہا تو مجھے یہ بتائیں, آپ کے افسروں کے گھروں میں پانی آ رہا ہے, وہاں
पानी के बलडोज भी जा रहे हैं, वहाँ हर वो चीज़ जा रही है जो उनकी बेगमात के लिए है। लेकिन हमारी माएँ बहनें बेटियाँ और बीवियाँ परेशान हैं कि जनाब हम पानी कहाँ से लाएं, गैस कहाँ से लाएं, और ये बताएं बिजली चली जाती है तो पूरा सिस्टम तबाह हो जाता है। और पानी को ठीक करने वालों का ये जवाब होता है कि जनाब बिजली कोई नहीं है। और भाई बिजली भी तो तुम्हारी है, गैस भी तो तुम्हारी है, ये पानी भी आपका है। आज पानी की परेशानी की वजह से लोग इस कॉलोनी को करबला कॉलोनी कहलाते हैं। यहाँ करबलाए मोहल्ला का पेशगेमा साबित होती है। कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कहा था कि रेलवे मजदूरों को, रेलवे लोको शीट के मुलाजमीन को जितना तंग कूफे वालों ने किया था उतना तंग आज रेलवे वाले का। हमारी बदकिस्मती है, हमारा नौजवान यहाँ बेकार बैठा हुआ है। हमारे भाई जो से सिर्फ घरों के नौजवान जो पढ़ते हैं आजकल वो पानी भरने पे लगे हुए हैं, कोई रोजगार नहीं है। यहाँ गंदगी के जो ढेर हैं माशाल्लाह ठेके पर दिए जाते, 1400 मकानों के लिए सिर्फ 6 हैं, और वो भी 6 सुबह आते हैं 1 बजे वो चले जाते हैं, वो 12 बजे ही चले जाते हैं। आजकल तो गर्मी हो गई है, सफाई वो सिर्फ वो करते हैं जहाँ से उन्हें कोई नाश्ता पानी मिल जाए तो वो गली साफ हो जाती है, वरना लैट्रीन और गटरों का जो बुरा हाल है। हर दफ़ा डीएस से गटर की सफाई करानी है अगर आपने इस इलाके में, तो वो आपको डीएस को अप्रोच करना है, फिर वो एप्लीकेशन डीएमओ के पास जाएगी, फिर हमारे सेंट्री इंस्पेक्टर साहब जो सुल्तान जलालुद्दीन अकबर हैं वो सुल्तान जलालुद्दीन अकबर को यहाँ से खुदा के लिए ट्रांसफ़र करें, क्योंकि गंदगी, यहाँ की गलाजत, यहाँ के मच्छर इस बात का सबूत है कि एक नाअहल सेंट्री इंस्पेक्टर को यहाँ पर लगाया गया है जो सिर्फ अपने सेंट्री इंस्पेक्टरों को फ़ोन पे काम करता है, और एप्लीकेशन डीएस की लिखी हुई, डीएस के ऑर्डर हुए भी वो एप्लीकेशनें उनसे गुम जाती हैं। हमारे लोग लिख कर दे कर तंग आ चुके हैं। आज 266, 254, 312, 303, 294, 265 ये वो ब्लॉक हैं जहाँ की माएँ बहनें बेटियाँ रोज़ाना रेलवे इंतज़ामिया की नाअहली का मातम करती हैं। हमारे ये नौजवान तबका है वो परेशान है कि हम किस अज़ाब इलाही में मसरूफ़ हैं, जहाँ हमें ना नहाने के लिए पानी मैसर है, ना पीने के लिए मैसर है, ना कपड़े धोने के लिए पानी मैसर है, और ना हकूक़े ज़ौजियत अदा करने के बाद पाकी और नापाकी अदा करने के लिए भी यहाँ पर पानी की सहूलत नहीं है। और ये एक तल्ख हकीकत है कि रेलवे जहाँ पर आज हमने 6 टंकियाँ लगवा दी हैं, शेख रशीद ने अपनी लगवा दी है, ज़ैन इजाज़ साहब ने अपनी लगाई है, आमर ज्ञानी साहब ने अपनी लगाई है, टंकियाँ 6 हैं, पानी नहीं मिलता। और यहाँ के जो खुसूसन प्लानिंग मेकर हैं जिन्हें हम IUW स्टाफ करते हैं, उनकी अखलाकी हालत ये है जो उन्हें चुप करके कुछ दे देता है वो उसकी लाइन सीधी कर देते हैं, और जो बेचारे घर बैठे हैं उनकी लाइन टेढ़ी है, कभी कहीं से जॉइंट लग रहा है, कभी कहीं से जॉइंट लग रहा है। कितनी बुरी बात है कि क्या पानी के मामले में भी आप इंसाफ नहीं करना चाहते? चले मैं इनकी तरफ से जाता हूँ फिर आपकी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बताएं सर क्या क्या मसला है? जनाब मैं रेलवे लेबर यूनियन चीफ ऑफ गनाजर रावलपिंडी डिवीज़न राजा मोहम्मद अल्ताफ़ जद्दड़, जनाब मैं कनूर चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि जो आकर हमारे मज़दूरों की बात आगे तक पहुँचाएंगे। यहाँ पर तो पानी की ये सूरत हाल है कि आज रमज़ान शरीफ से लेकर ये ब्लॉक सामने उनमें पानी नहीं आ रहा है। इन ब्लॉकों में जो आता था वो भी आज 1 महीने से बंद है, हमें पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। तो बाकी पानी का इतना ज़बरदस्त इधर शदीद लड़ाइयाँ होती हैं, IW के पास जाते हैं वो भी हमारी बात नहीं सुने। हम DS रावलपिंडी से अपील करते हैं कि वो जल्द से जल्द या तो IW का महकमा ख़त्म करे, अगर ख़त्म नहीं करता है तो उनको फिलफौर या कॉलोनी में हर आदमी को पानी मुहैया करें। यहाँ पर पैप लाइनें बिछी हुई हैं, वासा से भी हमने, इन्होंने कहा जी वासा वालों से ऑर्डर करा कर लाए, हम वासा से भी ऑर्डर करा कर अपने पल्ले से कीमती पैप डाले, उनमें ही पानी नहीं आ रहा है। इन्होंने आगे 2-3 औरों को कनेक्शन दे दिए, अगर एक ब्लॉक का कनेक्शन है उसमें से इन्होंने 6 ब्लॉकों को कनेक्शन दे दिए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि फिलफौर जो है ना ये पानी मुहैया किया जाए। इस इतनी सख्त शदीद गर्मी में हमारे बच्चे तड़प रहे हैं, ऊपर से बिजली नहीं होती है, अगर बिजली नहीं हो पानी हो चलो
गसल कर ले, थोड़ी ठंडक महसूस हो जाती है, मगर ये नहीं है। यहाँ ये देखो गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं, ना कोई सफाई का इधर ख्याल है, और ऊपर से हम खुद 5% भी कटा रहे हैं तनख्वाहों में से, वो भी मेरा 2200-2300 रुपया बनता है महीने का, कटता है, उसमें 9 क्वार्टरों की रिपेयर है, 9 कुछ है। ये सारा पैसा जो है ठेकों की सूरत में ये खा रहे हैं, जमा हो रहा है, और ये लोग इंतजामिया खा रही है रेलवे, और यहाँ किसी चीज़ पर तवज्जो नहीं दे रहे। कितनी आबादी कितनी है आपकी यहाँ पे, आबादी की कितनी तादाद है? ये तो तकरीबन जो है ना ये 1400 करीब क्वार्टर ये, और आबादी लगा लें 3000 के लगभग। 3000 के करीब आबादी है। तो 3000 आबादी के लिए कितने ट्यूबवेल मौजूद हैं यहाँ? ये ट्यूबवेल इधर इन्होंने जगह जगह पहले ट्यूबवेल किए, उनमें 2 महीने 4 महीने ट्यूबवेल चलता है, बंद हो जाता था, फिर नया ट्यूबवेल यहाँ से पैसा लगाकर इतने लाख का ठेका दे दिया, नया ट्यूबवेल आ गया। ये देखो सामने भी ट्यूबवेल लगा हुआ है, इधर भी लगे हुए हैं, उनमें पानी नहीं है। हम आपस में लड़ते हैं मजदूर, भाई यार हमारे घर पानी नहीं आ रहा है, उसके घर में पानी आ रहा है, यहाँ पर किसी के घर में भी इस वक्त पानी का इश्यू सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा। बिजली का क्या है? बिजली का भी है, ये भी लोड शेडिंग हो जाती है, गैस की लोड शेडिंग होती है, अभी गर्मियों में भी हो? गर्मियों में भी हो रही है, 4-4 घंटे 6-6 घंटे हो रही है। अब तो वापटा वालों ने अपने ट्रांसफार्मर ये नए लगाए मीटर, तो ये इनका ये मसला है कि बिल है, उधर रेलवे भी भेज रहा है, उधर वापटा भी भेज रहा है, हम दो बिल अदा, डबल बिल आते हैं। डबल बिल आ रहे हैं। वापटा की बिजली चली नहीं है, चल गया, कुछ इलाकों में चली है, कुछ में नहीं चली है, लेकिन बिल डबल आ रहे हैं। बिल डबल आ रहे हैं। बिजली के बगैर वापडा कितना बिल भेज रहा है इस टाइम? 554 रुपये और 500 लैंड के और मीटर का किराया आपसे हाँ, वो तो वसूल कर रहे हैं नाम से। और अब जो है ना वो वापटा बिजली जो जलेगी उसके बिल भेजेगी, उसके अलग लेंगे जी। तो बच्चों के लिए क्या सहूलियात हैं आपके पास? यहाँ पर ये पार्क बनाई गई थी, इसमें झूले लगाए गए थे, ये भी इन पर भी किसी ने तवज्जो नहीं दी। और ये देखो ये आपके सामने पार्क है, इसका क्या हाल है जी। तो जो यूनियन के लोग हैं, आप लोग क्यों नहीं आवाज़ बुलंद करते? हम तो आवाज़ बुलंद करते हैं, हर सतह पर आवाज़ बुलंद करते हैं, पर हमारी सुनाई नहीं है। हमें तनख्वाह नहीं मिल रही टाइम से, आज 2-2 महीने तनख्वाह नहीं मिलती हैं, ऊपर से ईद सर पर है, हमें तनख्वाह ही नहीं मिल रही। हम अपनी तनख्वाह के लिए भी रोना रोते हैं। ये तो रेल का इन्होंने बहुत बुरा हाल कर दिया है। तो रेलवे खसारे में, हुकूमत तो कहती है खसारे में है, ये कहती है कसारे में है, हम कहते हैं भाई रेल कसारे में नहीं है। ये इन्होंने प्रोग्राम बनाया, जहाँ सैलाब आया था जो सिंध में कोटा में, वो कुछ लैने पटड़ियाँ उखाड़ी गई थी उस सैलाब की वजह से, वो तो इन्होंने पहले 6 महीने ये हमें धोखा दे रखा भाई यार, वो उधर सारा पैसा लग गया, रेलवे कंगाल हो गई है। अब तो वो भी ट्रेनें चल रही हैं, और बड़े अफसोस की ये बात है कि जो रेलवे की ट्रेन है वो अटक से रावलपिंडी का 500 रुपया किराया ले रही है, और जो प्राइवेट है वो 400 रुपया किराया ले रही है। तो ये प्राइवेट वालों को हम ये दे रहे हैं, रेलवे को डेड कर रहे हैं। आप लोग बेरोजगार नहीं हो जाएंगे फिर तो हो जाएंगे ना। बस ये जो इन्होंने पॉलिसी बनाई है, ये निजकारी की तरफ रेलवे को लेकर जा रहे हैं, मजदूरों को परेशान कर रहे हैं, टाइम से तनख्वाह ना देनी, लोग तंग होकर वो भाग जाएंगे। आप ताएं जी, आप भी कॉलोनी के लिए क्या क्या मसाइल हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुताहिर है, मैं एक तालिब इल्म हूँ। ठीक है, ये मसला तकरीबन 1.5-2 महीने से चल रहा है। मेन इशू है पानी का। अभी फर्स्ट ईयर के पेपर थे, पेपर जिस तरह दिए हैं पानी के बगैर, यहाँ पर पेपर होता था सुबह, रात को यहाँ पर हम कैन उठा के पानी के लिए दौड़े होते थे। ठीक है, यहाँ के वालमैन भी आते थे, उनको बताते थे, डीएन साहब भी 3 से 4 बार इस जगह पे आए हैं, उन्हें सारा मसला बताया। जिस दिन वो आते हैं उस दिन लाइन में पानी आता, उसके अलावा पानी भी नहीं आता। ठीक हो गया, वालमैनों को बोल के उनका काम है पानी खोलना, जिस तरह मर्जी प्रेशर का पानी करके देना उनका काम है। ठीक है, उनको बोला है। ठीक है, अभी मेरे थोड़े से अगर सख्त अल्फाज हो गए, कोई मसला तो नहीं है आपको? ठीक है, तमीज़ के दायरे में। हाँ, तमीज़ की, गाली गलौज नहीं करनी उसके अलावा। ठीक है, इधर एक वाल मैन है शहजाद नाम के, सही है, चार्ज मैन है, कौन है मुझे इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन वाल मैन है। वो कल आए हैं मेरे पास, ठीक है, पानी का पूछने, वैसे भी वो आते रहते हैं पानी का पूछने, सही है। उनको सिर्फ मेरा इतना काम नहीं, मेरा हक नहीं बनता कि उनको मैं बताऊँ कि सर जी पानी नहीं आ रहा। ठीक है, आप पानी कहीं से भी करके दे पानी, क्योंकि कल डीएन साहब आए, उन्होंने कहा आपका पानी आएगा आज 7 से 8 बजे तक तेज़ पानी आएगा, आप भर लेना। पानी नहीं आया। शहजाद साहब आए, उनको बोला है पानी नहीं आएगा। इधर की पता नहीं इस कॉलोनी की कोई माफिया तंजीम है, कौन है,
اپنے لیے ڈون بنے ہوئے ہیں. کل وہ لوگ میرے پاس آ کے مجھے دھمکی دے کے گئے ہیں. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے نا, اپنے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ میں نے آواز اٹھائی ہے, 2 مہینے سے میں آواز اٹھا رہا ہوں, اسی جگہ پہ آواز اٹھا رہا ہوں. ڈی این کے دفتر بھی گیا ہوں, ان کے سامنے میں نے رپورٹ رکھی ہے, میں نے ان کے سامنے درخواست رکھی ہے جس کے اوپر کم سے کم کچھ 100 لوگوں کے سائن ہوں گے. عمل نہیں ہوا. میں اکیلا گیا ہوں ڈی این صاحب کے پاس, ڈی ایس صاحب کے پاس میں نے ویڈیو بھیجی ہے, ان کا کوئی رسپانس نہیں آیا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ پیچھے ہمارے نزدیک تو پھر وال میں نہیں رہ جاتے ہیں نا, ہماری اپروچ تو ڈی ایس تک ہے, اس سے اوپر تو ہمیں نہیں پتا کون ہے کون نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم نے آواز اٹھائی ہے, میں نے آواز اٹھائی ہے, کالونی نے آواز اٹھائی ہے, لیکن آگے مجھے دھمکیاں ملی ہیں کل. یہ میں میڈیا کے اوپر بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, کیا کیوں دی ہیں آپ کو؟ یہی جی, کالونی میں صرف تم تھوڑی ہو آواز اٹھانے کے لیے, اور لوگ بھی ہیں. تم آواز کیوں اٹھا رہے ہو؟ میری بات چبھی ہے ان لوگوں کو, کیونکہ میں آواز اٹھا رہا ہوں. میں گھر سے لوگوں کو بلاتا ہوں, لے کے جاتا ہوں. ٹھیک ہے, افسران بھی نہیں سنتے, کچھ بھی نہیں, مجھے تو بولنے ہی نہیں دیتے, میری تو بات سنتے ہی نہیں ہیں. یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا. کل وہ لوگ دیکھ لیں, اب میں نے آواز اٹھائی ہے نا, مجھے آگے دھمکی مل گئی ہے, اور انہوں نے بولا کہ آئندہ کے بعد محلے میں وہ شہزاد آئے, کوئی وال مین ہے, تم نے نہیں بولنا. میں نے کہا میں نے کیوں نہیں بولنا؟ پانی کا مسئلہ مجھے ہے نا, تم لوگوں کو نہیں ہے. مجھے مسئلہ ہے, میں بولوں گا, میں اپنے حق کے لیے بولوں گا, میں اپنے اصول کے لیے بولوں گا, جو اصول کی بات ہے وہ میں کروں گا. یہ تو آپ لوگوں کا شکر ہے, میں آپ لوگوں کی یقین مانے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئے ہیں. مجھے میڈیا پہ بولنے کا موقع ملا تو میں نے یہ بات آپ کے سامنے کھول کے رکھی ہے, ورنہ میں نے ادھر دبا لی تھی بات. سننے والا کوئی نہیں ہے. سننے والا کوئی نہیں. آواز اٹھائی ہے, 2 مہینے ہو گئے ہیں, لیکن کیا ہوا, کل آواز دبائی ہے میری, لیکن میں نہیں چپ پاؤں گا کیونکہ ہمارا مسئلہ ہے. جی ناظرین, پروگرام ایک شارٹ کمرشل بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد پھر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کالونی کے مسائل کیا ہیں. ویلکم بیک ناظرین, جیسا کہ ہم موجود ہیں ریلوے لوگو شڑ کالونی کے اندر, وارڈ نمبر 1 ہے. یہاں کے مسائل کیا ہیں, یہاں کے جو متاثرین ہیں وہ بتا رہے ہیں. سب سے جو بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ پانی کا ہے, اس کے بعد بجلی اور گیس کا ہے. یہاں پہ ایسے بھی گھر موجود ہیں جہاں پہ 2 لائنیں آ رہی ہیں, ریلوے اور بجلی کی الگ الگ لائنیں ہیں, اور دونوں کے بل یہ لوگ ادا کر رہے ہیں. جی آپ کے کیا مسائل ہیں؟ السلام علیکم. میں ریلوے لوکو شیڈ میں ایز اے وائرمین ڈیوٹی کر رہا ہوں, اور یہ میرے کپڑوں کی حالت آپ دیکھ لیں. ابھی تک ہمارے گھر میں پانی نہیں ہے کہ ہم ہاتھ منہ دھو سکیں یا اپنا جسم صاف کر سکیں یا کپڑے صاف کر سکیں, کیونکہ ادھر پانی کا بہت بڑا ایشو ہے. اس کے بعد پارک کے حال یہ آپ کے سامنے ہے, اور پوری کالونی میں من پسند افراد کو پانی دیا جاتا ہے, اور جن کے کوئی تعلقات نہیں انہیں پانی نہیں دیا جاتا. سفارشی لوگوں کو پانی جی سفارشی لوگوں کو دیتے ہیں, اور جو بھی والمین ہیں 1 لائن کا پانی کھول دیتے ہیں, اور 3 لائنوں والے بیچارے دھکے کھا رہے ہیں, ان کے پاس پانی نہیں ہے. اور اس کے بعد پینے والا جو پانی ہے وہ سارا زنگ آلود پانی آ رہا ہے. ہمارے پاس فلٹر ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی 3 فلٹر 4 ہیں, لیکن ایک بھی جو ہے نا کام نہیں کر رہا. جو پانی پائپوں میں آ رہا ہے ہم لوگ زنگ آلود پانی پی رہے ہیں, جس سے ہمارے بچے بھی بیمار ہو رہے ہیں اور ہم لوگ بھی. جی بالکل, اس کی وجہ سے بہت ایشو ہیں. اور اس کے بعد پارک کا مسئلہ ہے نا, بچوں کے کھیلنے کی جگہ ہے, گندگی اتنی ہے جگہ جگہ پہ. یہ آپ کا کیمرہ مین دکھا سکے, یہ دیکھیں کیا حال ہے, اور یہ دیکھیں نالے, اور ادھر مچھر سارا, جس کی وجہ سے ڈینگی. آپ کو سہولیات نہیں اثر کرتا آپ کی؟ کوئی سہولیات نہیں ہے سر, نہ ہمارے پاس پانی ہے, نہ بجلی ہے, اور نہ گیس ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو صفائی کا حالات جو ہیں یہاں پہ ریلوے کا کوئی سامنے ہے سر, آپ کا کیمرہ مین دکھا سکے اگر یہ دیکھیں پارک کا یہ حال ہے. پارک ہوتا ہے بچوں کے لیے صاف ستھرا ہو, پارک ہمارے کا یہ حال ہے. یہ دیکھیں کس طرح شاپر بکھرے ہوئے پڑے ہیں, اور نالے کا یہ حال ہے. صفائی کا کوئی انتظام نہیں ہے, اور نہ پانی کا, اور کوئی سہولیات ہمیں نہیں دی جا رہی. تو کیا آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں, کیونکہ ہماری سنائی نہیں ہو رہی, کوئی بھی ہماری نہیں سن رہا. لہٰذا آپ لوگوں کے وسط سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ یا کوئی ہمارے جو ریلوے منسٹر ہیں وہ ہماری فریاد سن لیں, تو ہمارے بچوں کو سہولیات دے دیں. تو گیس یہاں پہ بھی سنا ہے گرمیوں میں گیس نہیں آ رہی. لوڈ شیڈنگ ہے سر, گرمیوں میں بھی ہو رہی ہے, ابھی بھی ہو رہی ہے, سردیوں میں تو ہوتی ہے. آج کل بھی گیس نہیں ہے, نہ پانی ہے, نہ بجلی ہے, اور نہ گیس ہے. بل ہمارے ڈبل آ رہے ہیں. وابڈا والے بھی ہم سے لے رہے ہیں اور دوسرے بھی لے رہے ہیں. تو آپ لوگ دیتے کیوں پھر ڈبل بل کیوں ادا؟ کیا کریں ہم, اگر بل نہیں دیں گے تو ہمارے میٹر کاٹ جائیں گے, ہم بچوں کو لے کے کدھر جائیں گے. یہ مجبوری ہے ہماری, ہم نے تو. آپ آگے ہیں بیٹا, آپ بتائیں کیا مسائل ہے؟ پانی آ جائیں آپ. السلام علیکم, میں وقار احمد ہوں. جی پڑھتے ہیں جی کون سی کلاس میں؟ فرسٹ ایئر میں. اچھا, کیا مسائل کیا ہیں آپ کے یہاں؟ سب سے زیادہ تو پانی کا مسئلہ ہے یہاں پہ. پانی کا یہ مسئلہ نا کہ 1 لائن میں آتا ہے نا, تو 3 لائنوں میں نہیں آئے گا, نہیں آتا. تو یہ پچھلے مہینے ہمارے پیپر جا رہے تھے, تو ہم پیپر جو ہے نا, پیپر میں آدھے پیپروں میں تو لیٹ ہو جاتے تھے پانی کی وجہ سے, کیونکہ گھر میں پانی نہیں ہوتا تھا, کیونکہ جو ہے گرمی ہے نہا کے جانا پڑتا تھا, بالکل پانی نہیں ہوتا تھا.
جس کی وجہ سے بہت زیادہ ذلیل و خوار ہوتے تھے ہم لوگ. جگہ جگہ پہ لوگوں کے دروازے کھٹکاتے تھے, جی ہمیں اگر آپ کے گھر پانی آ رہا ہے تو پانی دے دیں. نہ ادھر آ رہا ہوتا تھا پانی, جس لائن میں جاتے تھے وہ کہتے تھے بھائی آپ کا مسئلہ آپ جاؤ. تو بھائی ہمارے ساتھ جاتے رہتے تھے, ہم بھی بھائی کے ساتھ جاتے رہتے کرنے کے لیے. بھائی کے بھی پیپر اور تھے, ہمارے ساتھ ہی جاتے تھے. ان کی صبح کی شفٹ تھی, میری شام کی. یہ بھائی رات کو بھرتے رہتے تھے پانی. یہاں پر بس یہی تھا کہ جو آتا تھا وہ کہتا تھا جی جاؤ بھائی یار اوپر والے کے پاس جاؤ. پھر یہاں پر IW والے جاوید ہے, اس کے پاس ہم لوگ گئے ہیں تو وہ اپنے گھر کے آگے کھڑا ہو گیا ہے, کہتا ہے جی جاؤ, نہیں دیتا پانی. کیا دیتے ہیں؟ جی دھمکیاں دیتا ہے, کہتا ہے جاؤ جس مرضی کے پاس جاؤ. وہ بھی ریلوے کا ملازم ہے وہ؟ ہاں IDW کا ہے. اچھا. پھر ہم لوگ رات کو گئے ہیں DN کے پاس. وہ DN صاحب ادھر آئے ہیں, انہوں نے پوری کالونی کا وزٹ کیا. یہاں پر دیکھا ہے کہ گندا پانی آ رہا تھا, نالی والا پانی آ رہا تھا. پائپ لائنیں اتنی خراب ہو چکی ہے نا کہ جو زنگ آلود پانی آ رہا ہوتا ہے بالکل جو ہے نا, جو پینے کے لیے بھی وہی پانی استعمال ہوتا ہے. پینے کے لیے تو پینے کے لیے لائق ہی نہیں ہوتا پانی. پیے بندہ کس طرح, اتنی بدبو آ رہی ہوتی ہے جس طرح گٹر میں سے بو آ رہی ہو. اس طرح لگتا ہے گھر میں ہی گٹر کھول دیا کسی نے, اتنی بو آ رہی. جی بالکل گندا پانی آ رہا ہوتا تھا. تو کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ یہاں پر یہ ساری لائنیں صحیح کر دی جائیں, فلٹر کو جو ہے نا ریپیئر کریں, کہ تاکہ ساروں کو پانی کی سہولیات صحیح ملتی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ تو چھوٹے, کیا مسئلہ ہے یہاں پر بہت بڑا مسئلہ پانی کا ہے. جی. پانی بالکل بھی نہیں ہے یہاں پر. ہم پانی کے لیے ذلیل ہو رہے ہیں کالونی میں. ہماری مائیں بہنیں باہر روڈوں پر آ کر پانی کے لیے گھوم رہی ہیں. تو پھر کیسے گزارا ہوتا ہے؟ گزارا بہت مشکل سے ہوتا ہے. مسجد میں پانی لینے کے جاتے ہیں تو ادھر کے امام صاحب بھی یہی کہتے ہیں جی پانی مسجد دیتی کوئی نہیں, اور ادھر کی پائپ لائنیں اتنی خراب ہے. دوسرا پانی ساتھ مکس ہو کے, گٹر کا پانی مکس ہو کے آ رہا ہے, تو وہ اتنا گندا پانی ہوتا ہے. آپ اس کی بو سوں گے تو آپ پتہ چلے آپ کو. سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے. اس کے بعد بجلی کا مسئلہ ہے. وہ رات کو سو رہے ہوتے ہیں 12-1 بجے, تو اس ٹائم بجلی چلتی ہے. حالانکہ اس ٹائم آدھی نیندر بندہ کر رہا ہوتا ہے, تو اس وقت بجلی چلی جاتی ہے. اور ماشاءاللہ کوارٹر بھی ایسے ہیں ادھر بندہ 2 منٹ بہ میں لگ پتہ جانا ہے, آواز نکل جاتی ہے بندے کی. بہت گرمی ہوئی تھی اندر. تو گیس کی کیا پوزیشن ہے؟ گیس تو سردیوں میں حالانکہ بالکل ہی نہیں ہوتی, اور گرمیوں میں تو اب گرمیوں کا بھی یہی حال ہے. گرمیوں میں لے کے جا رہے ہیں. رات گرمیوں میں بہت زیادہ جا رہی ہے گیس. تو گراؤنڈ وغیرہ یہاں پہ آپ کے لیے کیا ہے؟ کرکٹ گراؤنڈ وغیرہ ہے؟ کوئی نہیں ہے. پیچھے پارک تھا, اس میں اتنے اچھے خاصے جھولے لگے ہوئے تھے. یہ بالکل ٹھیک ہوا, جھولے پہ پٹ کے لے گئے چوڑ کوئی. اچھا. یہاں پہ چوکیدار نہ, ہاں چوکیدار کوارٹر ہے یہاں پر. کون سا چوکیدار؟ ادھر وال مین آ کے کوئی بات نہیں سنتے پانی کے لیے. وہ لمبا وال مین سجاد نام ہے, اور دوسرا اس نے کوئی بلایا, وہ بھی اس کے گھر میں جب گیا تو آگے سے کڑخانی کھڑا تھا, تسی میرے گھر بندے لے کے آگے جی. اب وہ وال میں تو ذاتی ملازم ہوں, کہتا ہے میں آپ کا ذاتی ملازم ہوں. ہم نے کہا آپ ملازم تو ہے نا, ذاتی نہیں ہے, ملازم تو ہے نا ریلوے کے. آپ کا کام بنتا ہے آپ ہمیں پانی دیں. آپ پانی دیں گے تو کون دے گا؟ اس ٹائم کربلا کا میدان بنا ہوا ادھر. نہیں ملتا. آپ آگے ہیں جی بزرگوں, کیا مسئلہ کیا پانی کا؟ یہ پانی بالکل ریلوے کوارٹر میں نہیں آ رہا. میرے ملازم میں ادھر کام کرتے ہیں جی. ہم سے آتے ہیں تو بالکل پانی ادھر ہوتا ہی نہیں ہے. اچھا. تو بجلی بھی چلی جاتی ہے, گیس بھی چلی جاتی ہے, بالکل پانی ملتا ہی نہیں, ملتا نہیں ہے. تو پھر کیا حال کیا ہے اس کا؟ حال کا بالمین کو کہتے ہیں پانی کھولو, تو آگے سے لڑائی کہتے ہیں پانی. جو آپ کے افسران ہیں, آپ ریلوے کے ملازم ہیں اوپر, وہ آپ کی نہیں سنتے کمپلین؟ وہ نہیں سنتے. تو یہ جو یونین کے لوگ ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یونین والے کو یہی بات کرتے ہیں, پر آگے کرتے ہیں بات, ہاں, لیکن ان کی بھی وہ نہیں سنتے. تو پھر کیا حال ہے, کیسے یہ مسائل آپ کے حال ہے؟ اب دیکھو پارک میں گند پڑا, وہ یہ گندگی وہ یہ ٹہل لگے ہوئے. ہم بات کرتے ہیں پانی کھولو, نہیں کھولتے. تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ والمان یہ پمپ ٹھیک کرے, سارا فلٹر وہ والا سارا ٹھیک کریں, تو پانی کھولے, ہمارا پانی ہم سارا ہر جائے. آپ آگے ہیں جی, آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو بھائی یہ کہتا ہوں یہ سیوریج لائنیں جو ہمارے ہیں ایک, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو پیپ ہیں گھروں کے, یہ پرانے 100 سال ہو گئے ہیں ان کو پڑے ہوئے ہیں. یہ تو لازمی بھائی گندا پانی آئے گا ان میں, صاف کیسے آئے گا؟ اس لیے ان کی چینج کیا جائے. جو ہمارے گٹروں کی لائنیں ہیں یہ ٹوٹ پھوٹ گیا, اس کے لیے تو یہ قبرستان اچھا ہے. ادھر کوئی قبریں پکی ہیں, کوئی کچی ہیں, ان کو بھی گارا لگا ہوا ہے. ہمارے کوارٹروں کی حالت دیکھیں, انسان ادھر افسروں کی حالت یہ ہے, افسر بتائے نا کوئی, یہ ان کی کوارٹروں کی حالت ہے. ہم اپنے خرچے سے 1.5 سے 2 لاکھ روپے میں نے لگایا. میں نے درخواست بھی دی ہے کہ ہمارے کوارٹر کا یہ مسئلہ ہے, فروش ٹوٹے ہوئے ہیں, دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں, چھت پانی آ رہا ہے. کسی نے 1 روپیہ نہیں لگایا. ہم نے خود 1.5 سے 2 لاکھ روپیہ لگایا. تو ہم کس کے پاس جائیں؟ کوئی سننے والا نہیں ہے. کام اسی کا ہوتا ہے جو افسروں کا ہے. غریب بندے کا کوئی سنتا ہے؟ کوئی سننا سنائی ہے ہی نہیں.
किसी बात कोई मुझे बता दीजिए, लाइनें देखे ना पानी क्या, कोई नहीं सुनता। क्या ये लोगों की नहीं जरूरत है मुलाजिमों की, फिर तो रखे क्यों गए? अगर जरूरत थी तो हमें बुलाया आपको गया। कितना अर्सा हो गया रेलवे में? मेरे तो 17 साल हो गए कॉलोनी में रह रहे इस कॉलोनी में रह रहा हूँ। 17 साल से कॉलोनी चेंज नहीं हुई। कोई पैर टूटे भाई, आप देखें तो गंदा पानी, अंदर कीड़े इसके पानी से निकल रहे हैं। डेंगू वाले भी आते हैं, उनका भी यही हाल है। पानी जब उनको कोई पूछता है तो हमारा चेक करें ना। के नुमाइंदे के हम इंशाल्लाह इन इश्यूज़ पे ऊपर बात करते रहते हैं। डीएस साहब से बात करते हैं, डीएमओ को बताते हैं, डीएन को बताते हैं, मीडिया के ज़रिए ये बात जाती है, प्रोटेस्ट के ज़रिए जाती है, स्टेशनों पर जलसे हो, लोको शेड में हो या किसी और मौके पर कोई भी प्रोग्राम हो तो हम अपने मसाइल को उजागर करते हैं। और इस वक्त इन मसाइल के अलावा जो सबसे बड़ा मसला चल रहा है, गालबन वो पूरे पाकिस्तान का है, तो उसमें रेलवे का हर मुलाजिम शामिल है। रेलवे में तनख्वाहों का बुरहान और अजाब आया हुआ है। ए टूर के मुलाजमों को तनख्वाह 20 दिन के बाद, बी टूर वालों को आज तक नहीं मिली, जिन्हें 5 तारीख को तनख्वाह मिलनी चाहिए थी, जिन्हें 15 तारीख को तनख्वाह मिलनी चाहिए थी, उन्हें भी हमें उम्मीद नहीं है कि रेलवे तमाम एहतजाज, तमाम प्रोटेस्ट के बावजूद तनख्वाहें नहीं मिल रही, न 5 वालों को न 15 वालों को। और आज मिनिस्टर साहब खैर से हज की अदायगी करने चले गए हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, क्या किसी ऐसे शख्स का हज हो सकता है जिसके पीछे लोग फाके से मर रहे हो, जिनके बच्चे आए बददुआएं दे रहे हो कि जनाब आप हमारी खुशियों को गारत करके जा रहे हैं, हमारे कपड़े नहीं है, हमारे खाने के लिए नहीं है, हमारे पाँव में जूती नहीं है, आज दुकानदार हमें सौदा नहीं दे रहे, हमारे बच्चों को ट्यूशन सेंटर से खारिज कर दिया गया है। क्या ये बातें आपके साथ नहीं होती? पिछले दिनों में अफसरान की भी तनख्वाहें रुकी हैं, लेकिन यकम वालों को सबसे पहले देते हो, जो सबसे कम काम करते हैं और जो सबसे ज़्यादा अपना खून पसीना बहाकर इस रेल के पहिए को रवा दवा रखते हैं, उन्हें सिसका सिसका कर, तड़पा तड़पा कर, रुला रुला कर आप तनख्वाहें देते हैं। क्या मसला है? मैं कहना चाहता हूँ कि पानी वो नहीं दे रहे। कल भी आए हैं कौन नहीं दे रहे? ये वासा वाले। अच्छा, रेलवे वाले? जी। अच्छा, क्यों, वजह? पता नहीं क्यों नहीं दे रहे। कल भी आए हैं, कह रहे हैं कि हम 1 से 2:30 बजे तक देंगे और उन्होंने दिया ही नहीं है। वो डीएन आया था, पता नहीं सोहेल नाम है, वो आया था गाड़ी में, तो कहता है कल से आपका प्रॉपर आएगा, ठीक है पानी आएगा। तो आज आया ही नहीं है। हम जिलीले हो रहे हैं, बाहर फिर रहे हैं पानी लेके। कहाँ से लाते हैं पानी? कभी किधर से ला रहे हैं, कभी किधर से, देख रहे हैं जिसके घर है उधर से ला रहे हैं। स्कूल पढ़ते हैं? स्कूल नहीं पढ़ता, अभी मदरसे से हिफ्ज किया है। हिफ्ज किया है, तो पानी भरने लगे हो आप? पानी भर रहे हैं, अभी छुट्टियां, पानी भर रहे हैं। पानी भर रहे हैं, छुट्टियों पे आए हुए हो? इधर ही रहता हूँ कॉलोनी में। मदरसा किधर है? मदरसा ये पीछे ही है। पीछे ही है। ठीक। आप आ गए हैं जी, आप बताएं सर क्या मसाइल है? मसाइल तो काफ़ी हैं जी। ये तो बिजली का भी मसला है। बिल जो हैं 2 तरफा आ रहे हैं, एक तो रेलवे की तरफ से भी आ रहे हैं, एक वापडा की तरफ से आ रहे हैं, क्योंकि वापडा को इन्होंने जो बिजली का सिस्टम है वो ट्रांसफ़र कर दिया है। तो अब इसके बाद पानी का मसला जो है, ये बच्चे ने जो बताया जो वो भी मसला है काफ़ी सारा, लेकिन डीएन साहब आए हैं, शायद हो सकता है ये सॉल्व हो जाए। लेकिन वो तनख्वाहों का भी मसाइल है रेलवे। तनख्वाहों का क्या इशू है? तनख्वाहों को बस ज़्यादा ना वो ड्यू डेट पे जो मुलाजमीन को लेट होती मिल जाती है, तो लेट हो जाती है। ये अहम मसाइल हैं जो तो क्वार्टरों में आप लोग इतना अरसा दराज से रह रहे हैं, तो रेलवे वाले तो जो नहीं देते, अफसरान के घरों में भी यही हालात हैं? अफसरान के घरों में भी पहले तो उनकी भी लेट हो जाती थी कभी कभी, हाँ, लेकिन तनख्वाह नहीं, सहूलियात के हवाले से। सहूलियात तो उनका अलग सिस्टम, उनका कॉलोनी अलग है, वो तो अलग है, वो अलग साहब है। लेकिन हमारी जो हम तो लोको कॉलोनी की बात कर रहे हैं, कॉलोनी के जो मुलाजिम है उनके मसाइल बहुत ज़्यादा जी। तो हो सकता है गैस का क्या मसला है? गैस भी जो है ना प्रेशर इसका बड़ा कम हो जाता है, खास करके शामी 8 बजे के बाद ना ये बहुत प्रेशर कम हो जाता है, और फिर ये प्रॉब्लम होती है, कोई सिलेंडर वगैरह इस्तेमाल करते हैं। बिजली की भी लोड शेडिंग जारी है? बिजली की भी लोड शेडिंग है। बिजली का मैं बताया ना कि 2 तरफा बिल आ रहे हैं, लेकिन वो बिजली ना इधर से आ रही है, वापडा से भी और उधर से भी है, मसला है। तो बच्चों का क्या हालात है? पार्क वगैरह है? नहीं, सफाई का भी थोड़ा सा इशू है, आप देख सकते हैं, ये मसला है। पार्क वगैरह भी हैं, लेकिन ये नहीं है जगह नहीं है। रेलवे के पास काफ़ी अपनी प्रॉपर्टी है,
बिल्कुल सहूलियात अगर बेहतर की जाए तो मेरे मसला हल हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो क्या आप जो अफसरान की जो है ना, इंतजामिया की, हुकूमत की थोड़ी सी तवज्जो जो है ना मरकूज़ हो इस तरफ, तो मेरे ख्याल में बेहतरीन रेलवे का जो है। खुद रेलवे के मुलाजम है तो अफसरान के नोटिस में ये बातें नहीं देते कि कॉलोनी के करते रहते हैं, लेकिन उनके भी अपने मसाइल हैं, वो अफसर जो है वो नोट करते हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं होता। अमल दरामद नहीं करते। नहीं, अमल दरामद होता नहीं है। तो पीने का पानी बच्चे कह रहे थे यहाँ ये अभी पहले तो फिल्टर सिस्टम था यहाँ पर पानी का, जो साफ़ पानी का था, अभी वो भी इधर हमारी जो कॉलोनी में वो भी ख़राब हो गया। ख़राब हो गया वो भी। कितने अरसे से ख़राब है? मेरे ख्याल में तकरीबन साल के होने वाला है, होने वाला है। कोई रिपेयरिंग नहीं हुई इसकी? नहीं, रिपेयरिंग नहीं हुई। वजह क्या है इसकी? वजह तो हमें नहीं पता, तो कंप्लेन नहीं करते? कंप्लेन बड़ी कंप्लेन की है, कंप्लेन तो बहुत की लोग नहीं, बस वो नहीं है, उसके बाद अमल दरामद नहीं होता। तो पीने का साफ पानी कहाँ से लाते हैं? बस यही जो आता है ना साफ़ पानी, यही जो साफ़ करके वो इस्तेमाल इस्तेमाल कर रहे हैं। बीमारियाँ नहीं फैलती इससे? बीमारियाँ फैलती हैं, बस वो भी कह रहे हैं कि उसका सदेबाब कर लेते हैं लोग, इलाज करा लेते हैं, कोई जो है इस तरह कोई साफ़ पानी वगैरह खुद घर में उबाल चल लेते हैं, ये कोई जैसे गुजारा चला रहे हैं। गुजारा चला रहे हैं। तो क्या अपील करते हैं आप बाबा इख्तियार से? भाई इस थोड़ा मसाइल को हल करने की तरफ ना वो थोड़ा सा अपना जो तवज्जो दें, तो मेरे ख्याल में कोई मामला नहीं है, बड़ा मसला नहीं, बड़ा मसला नहीं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक शार्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद भी इन लोगों के हालात के बारे में पूछेंगे। बैक नाज़रीन, जैसा कि हम मौजूद है रेलवे लोगोशेड कॉलोनी में, यहाँ के मकीम मौजूद है, अपने मसाइल से आगाह कर रहे हैं, बच्चे भी मौजूद है। बच्चों से पूछा, जी बेटा क्या मसाइल है आपके? जी यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, तो बहुत से मसाइल है ना, पापा को तनख्वाह मिली है तो ऐसे बस यही काम हो रहा है। अच्छा, तो खेलने के लिए जगह है आपके? जी पार्क वगैरह है? जी एक खड्डा खोद दिया, इसमें जो मर्जी गिरिए। अच्छा, खड्डे खोद दिए जगह? यहाँ पे भी खोद दिया है, यहाँ पे आगे सारी जगह खड्डे खोद। तो फिर क्या कहाँ खेलते हो? हम यहीं पे अब आगे ही खेलते हैं। यहीं आगे खेलते हैं। आप चाहें बेटा? अस्सलाम वालेकुम, आपका शुक्रिया, चैनल वाले आए हैं, आपको कुछ बताते हैं कि ये इधर गंद है इतना ज़्यादा, कूड़ा फेंक के चले जाते हैं, उठाने वाले भी नहीं आते, उठाने वाले भी आते हैं तो महीने बाद आते हैं। तो स्मेल पूरी कॉलोनी में फैल रही होती है, इसलिए तो ये पीछे पार्क बना हुआ है, पहले पीछे बना था वो भी ख़राब बनाया है, ये पीछे अब आगे बनाया है ये भी ख़राब बनाया है। तो ये झूले जो लगाए गए थे, इसलिए तो ये रात को जो आते हैं पोल्ट्री ये सब आके तोड़ के ले जाते हैं, इसलिए बच्चे जितने भी मेरे भाई हैं सारे ये खेलने के लिए आते हैं, इनके लिए झूले नहीं होते, गिरते हैं, चोटें लगती हैं सबको, इसलिए इनका काम है तो हमारे लिए झूले बनाएं और सफाई करें इनके हमारे लिए और खेलने के लिए सब बच्चों के लिए। और यहाँ पर का पानी स्कूल वाला है आपका यहाँ पे? स्कूल जी है, रेलवे का जी, प्राइवेट है हमारा। स्कूल नहीं है? स्कूल में स्कूल नहीं है, उधर पानी नहीं है कोई, क्योंकि जब भी बच्चे जा रहे होते हैं कोई कहते हैं कि गर्मी बहुत है, कोई पंखे का नहीं है, कोई टूटा हुआ है, ये है वो है, पानी नहीं है ये वो, इसलिए घर आके बताया जाता है, बच्चे आके बताते हैं। जी आप बताएं जी, जैसे बच्चा कह रहा है पानी के बड़े मसाइल हैं, सफाई वगैरह क्या करें? अस्सलाम वालेकुम जी, बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा है, जैसे मेरे बुज़ुर्गों ने भी बताया है आप लोगों को कि 2 महीनों से पानी का मसला चल रहा है, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है, कभी कहाँ से भरते हैं कभी कहाँ से भरते हैं। पानी चूँकि मेन अपने बुनियादी चीज़ है हर इंसान की, पीने के लिए, नहाने के लिए, गुस्ल करने के लिए, हर चीज़ के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए पानी नहीं आएगा तो बच्चे भी परेशान हैं। उसके बाद अगर पानी आ जाता है तो बिल्कुल गंदा होता है, पीले कलर का होता है, क्योंकि पुरानी पाइपलाइनें बिछी हुई हैं यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। अभी तकरीबन 2 हफ्ते पहले मेरे घर में तकरीबन मेरे 3 बच्चे बीमार हुए, मैं बीमार हुआ, सिर्फ पेट के, हाँ जी, गंदा पानी पी के। तो ये मेरे हाल में कोई अंग्रेज़ों के दौर की शायद लाइनें बिछी हुई हैं, पाइपलाइनें जो अभी तक मुरम्मत नहीं हुई हैं। तो जब फिर वो नालियों में से गुजर रहे हैं, कहीं पाइप लीक है, नाली का पानी गंदा उसमें मिक्स हो रहा है, ठीक है, फिर जंग आलूद पानी है, जिस वजह से हर बंदे का, हर बच्चे का यही मसला है, हर घर में 2-3 बच्चे बीमार हैं, बड़े बीमार हैं, किसी को मोशन है, किसी को क्या है, किसी को क्या है, तो वो तो एक अलग बात है। अब वो पानी भी नहीं आ रहा पीने का। उसके बाद फिर आप देख लें गैस है, सर्दियों में चूँकि उस पर लोड होता है तो चलो ये मानी जा सकती है कि वो अपना लोड शेडिंग हो सकती है। गर्मी में कौन सी अपना ऐसी बात है कि गर्मियों में लोड शेडिंग है गैस की, ना गैस है ना बिजली है, इसके बाद ना पानी है, ठीक है। उसके बाद फिर क्वार्टरों की हालत भी आपके सामने है, ये सफाई आप देख लें, यहाँ सफाई का भी कोई निज़ाम नहीं है। पार्क एक है, ये जितने भी क्वार्टर हैं यहाँ पर, ठीक है, पूरी कॉलोनी में एक पार्क है और वो भी आप देख लें झूले टूट गए हैं इसके।
जबकि इस्लामाबाद में आप देख लें हर सेक्टर में 2-2, 3-3 पार्क हैं, बेहतरीन झूले लगे हुए हैं, बेंच हैं, पौधे लगे हुए हैं। यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर ठीक है, जब भी हम जाते हैं कंप्लेन वगैरह के लिए एप्लीकेशन लेके जाते हैं अपना आला जो हमारे बाला अफसरान हैं उनके पास, ठीक, वो कहते हैं हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है, ठीक है। 2 महीने बहुत ज़्यादा टाइम है, बच्चे भी पानी भर रहे हैं, औरतें भी पानी भर रही हैं, जिनमें बेचारे जो बुज़ुर्ग औरतें हमारी जो चलने के काबिल नहीं है वो भी पानी भर रही हैं। क्या करें, मजबूरी है कि पानी के बगैर गुजारा नहीं है। तो मेरी यही दरख्वास्त है अफसरान बाला से कि बराए मेहरबानी हमारी तरफ तवज्जो दें, हमारे जो मसाइल हैं इनको हल करें। अगर वो हमारे मसाइल हल नहीं करेंगे तो हम किन से कहेंगे जाके? मुझे तो और कोई नज़र नहीं आ रहा, कौन सुनेगा, ठीक है। पहले तो ये 3 मसाइल थे, चौथा मसला ये पैदा हो गया है कि अब जो तनख्वाहें हैं वो नहीं मिल रही, टाइम पे नहीं मिल रही। अब देखें बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, दूसरा तीसरा खाने का मसला, तनख्वाहें नहीं मिलेंगी तो ये लोग कहाँ से अपने खर्चे पूरे करेंगे? बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, ठीक है ना। तो बराए मेहरबानी मैं यही कहूँगा कि इस तरफ ख़ास तवज्जो दें। जी आप क्या कहते हैं सर, क्या मसाइल? सबसे पहले तो आपके आने का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके प्रोग्राम की वसासत से मैं हमारे जो इंतज़ामिया और इदारे हैं ना मुतलका जो हैं, ये बच्चे छोटे छोटे देख लें, अल्लाह पे यकीन करें, रमज़ान से हमारी कॉलोनियों पानी नहीं है। मैं ये नहीं कहता मेरी गली में नहीं है, उस गली में नहीं है, पूरी कॉलोनी का मसला है। दिन देख लें कौन से जा रहे हैं, 24-24 घंटे हम लोग ड्यूटीज़ करके आते हैं, 16-16 घंटे करके आते हैं। हमारा काम क्या है, बाइक निकालो, रेडी निकालो, कुछ भी निकालो, गैलने लेके कभी मटक्याल जा रहे हैं, कभी स्कीम 7 जा रहे हैं, कभी बेकरी चौक जा रहे हैं। अल्लाह पे यकीन करें कोई ऐसा ऑफिसर नहीं है जिसकी कोठी में पानी ना हो। जिधर भी पेश रहा है सिर्फ और सिर्फ आम मजदूर पेश रहा है। हमारा कसूर क्या है कि हम क्लास 4 के हैं, क्लास 4 इंसान नहीं है क्या? ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा मुस्तकबिल खड़े हैं। ये सबसे बुनियादी चीज़ है पानी। फिर बिजली से आप देख लें, किसी जगह वापडा की बदमाशी चल रही है, किसी जगह हमारी रेलवे की बदमाशी चल रही है। पानी का इशू ले लें, पार्क का इशू ले लें, ग्राउंड का इशू ले लें, जो भी मसाइल हैं हमारी कॉलोनी के अंदर। तो आपके प्रोग्राम की साथ मैं प्रोग्राम पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्लाह का वास्ता है कि हम लोग अगर क्लास 4 है तो हमें इस चीज़ की सलाह दी जाए, हमारे हकूक़ हमें दिए जाए। तो जो यूनियन है या जो आपके दूसरे लोग हैं वो आवाज़ नहीं बुलाते? भजन यूनियन वाले आवाज़ उठाते हैं, लेकिन यूनियन के ऊपर जो इंतज़ामिया के साथ मगरमच्छ बैठे हुए हैं ना, वो जिस तरह कहते हैं ना भैंस की बहन होती है, इधर से सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं, लारा लपा देते हैं। ये खड्डे इन्होंने मरवाए हुए 10 दिन हो गए, DN साहब बेशक सुन रहे हैं, मैं फिर कहता हूँ 10 दिन हो गए खड्डे लगवा के गया का बचा, कोई हमारा उसका रद्द-ए-अमल नहीं हुआ। आपस में हम लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे का, तुमने क्यों लगाई मोटर, तुमने क्यों लगाई, तुमने क्यों। ये भाई 3 दिन हो गए अपने पड़ोसियों के साथ लड़ रहे हैं। वजह यार बिजली के बिल हमारे आप लोग देख लो, आधी हमारी सैलरीज काट रही है। 2 घंटे में 1 लीटर पानी हमें नहीं मिल रहा। ये किस चीज़ की हमें सजा मिल रही है? कभी लारा लगाते हैं ये टैंकियों का पानी आपको दे रहे हैं, ये टैंकियों का पानी आपको दे रहे हैं, कब मिलेगा? रमज़ान से पानी नहीं है पूरी कॉलोनीज़ में। तो किसी ऑफिसर को कोई तकलीफ नहीं है जो कह रहा कि मेरे घर पानी नहीं है। सैलरीज का इशू ले ले, आज 24-25 तारीख हो गई है, 2 दिन बाद छुट्टियाँ हो रही हैं। यकम से 5 वालों की सैलरी आई है, 10 वालों की नहीं है, 13 वालों की नहीं है, 15 वालों की नहीं है। घरों में घुसते हैं, बच्चे में पूछते हैं पापा जी क्या किया है, राशन नहीं है घरों में। ऐसे ही ट्रेनों पे चले जाओ, आपको 1-1 हफ्ते की बुकिंग के नहीं मिलेगी सीट, नहीं है भाई आपकी सीट नहीं है। तो किधर माँ के लेके जा रहे हो, खजाने में डाल रहे हो पैसे। हम लोग 16-16 घंटे जो सब ड्यूटियाँ कर रहे हैं भाई, 24-24 घंटे कर रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, वो इनकम किधर जा रही है? फिर कह रहे हैं रेलवे नहीं, खसारे में इंतजामिया की सैलरी क्यों नहीं लेट होती? हमें तो कोई ऑफिसर रोता हुआ नजर नहीं आया जिसने कहा मेरी 1 दिन भी लेट हुई हो। जिधर भी रो रहा है, क्लास 4 का स्टाफ रो रहा है, गाड़ियाँ इन्होंने ठेके पे दी हुई हैं, वो उन्होंने अपनी मनमर्जी से दी है। हमारा उसमें क्या कसूर है? मजदूर काम कर रहा है, ट्रेनें चल रही हैं, कोचेस चल रही हैं, प्लांट्स चल रहे हैं, ड्राइवर अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं, इनकम किधर है कोई पता नहीं। हेल्थ के क्या मसाइल है? सेहत के क्या मसाइल है? सेहत के नहीं पूछे भजन, सेहत के नहीं पूछे। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो आपको यहाँ पे इजी खड़ा नजर आएगा, हर बंदा किसी न किसी डिस्टर्बिंग में है। मैं खुद हार्ट पेशेंट हूँ, ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, ये भाई साहब हैं, ये बुजुर्ग हमारे खड़े हैं, ये राजा साहब खड़े हैं, ड्यूटीज करके आते हैं, फिर जनाब अली इस काम में लग जाओ, उस काम में लग जाओ। हमारे लोगों का यही काम है। आए दिन हमारी कॉलोनीज में झगड़ा हो रहा है, आपस में हम लोग झगड़ रहे हैं, क्यों? ये सहूलतें प्रोवाइड करना इंतजामिया का काम है, अभी तक प्रोवाइड नहीं। बिजली पे हम टैक्स दे रहे हैं, सैलरीज में से हमारा पानी का कट रहा है, पैसे ऑलरेडी काट रहे हैं, हर चीज़ का टैक्स हम लोग पेड कर रहे हैं, फिर हमारे को भी दिए जाए। कटौती 5% की कर रहे हैं। अल्लाह पे यकीन करें 5 किलो सीमेंट लाना पड़ता है या चूना लाना पड़ता है, हमें अपने पास से लाना पड़ता है। कटौती महीने की कितनी हो रही है? 1500, 1800, 2000, 2500।
यार वो किधर लेके जा रहे हो? सबसे बड़ा हमारा मुतालबा है जी हमें पानी दिया जाए। पानी दिया जाए। आप क्या कहते हैं? मैं सबसे ज़्यादा पहले मशकूर हूँ चौधरी अदनान बरी साहब का, कोहिनूर की पूरी टीम का, कि जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमें इज़्ज़त बख्शी। जिन मौज़ूआत पे या जिन मसाइल पे आपने ये बात करने का मौका दिया, इस हवाले से मैं इतनी सी बात ज़रूर करूँगा। ये हमारे मुल्की हालात के हवाले से बात करूँगा। इस देश में लगता है अदालत नहीं होती, इस देश में लगता है अदालत नहीं होती, जिस देश में इंसान की हिफाजत नहीं होती। मखलूक खुदा जब हो किसी मुश्किल में फंसी, सजदों में पड़े रहना इबादत नहीं होती। हर एक शख्स सर पर कफन बांध कर निकले, हक के लिए लड़ना हो तो बगावत नहीं होती। जुल्म की इंतहा ये देख लें कि DS, DN या आला कैटेगरीज के जितने भी लोग हैं, उन्हें बाहर रोडों पे निकलना नहीं पड़ता। ना उन्हें तनख्वाहों के लिए निकलना पड़ता है, ना उन्हें पानी के लिए निकलना पड़ता है, ना उन्हें बुनियादी सहूलियात के लिए निकलना पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ उन्हें मौके पे प्रोवाइड की जाती है। चाहे वो सेहत का मामला हो, चाहे वो सैलरी का मामला हो, चाहे वो बेनिफिट्स का मामला हो। अगर जलालत है तो सिर्फ गरीब के नसीब में लिखी हुई है। क्लास 4 तबका इस वक्त पिस चुका है। किसी ऑफिसर की तनख्वाह लेट नहीं हुई, यकम तक उनको सैलरी उनके अकाउंट में ऑटोमेटिकली चली जाती है। यकम वालों को अभी तक सैलरी क्लियर नहीं हुई, 5 वाले वो भी पिस चुके हैं, 10 वाले वो अभी तक आई नहीं, 15 वालों का तो नाम ही ना लें। 15 वालों की उन्होंने हालत ये की हुई है कि दुकानदार के पास, किसी के पास आप मेरे साथ चले जाएं, इन कैमरा में आपको दिखाऊंगा, उधार वो नहीं देते। वो ये नहीं कहते कि आप उधार लें, वो कहते हैं हमें आप पे यकीन नहीं है, आपका इदारा आपके साथ ब्लफ कर रहा है, तो हम लोग तो बहुत बेबस लोग हैं, हम अपने बच्चों का पेट पालें या आपको उधार देकर आपके मामलात कंप्लीट करें। अगर आपका निज़ाम नहीं चलता तो वो आपका मसला है। हमारी पेमेंट्स जो आपने मटेरियल लिया है वो हमें प्रोवाइड करें। तो अब ये देखें, आपने सेहत के हवाले से बात की, सेहत के हवाले से इतनी बात करूंगा कि रेलवे हॉस्पिटल में आप मेरे साथ चले जाएं, वहाँ पे आपको डॉक्टर कम सही ज़्यादा नज़र आएंगे। इन केस कि अगर हमारा कोई रेलवे एम्प्लॉयज़ क्लास 4 का उनके हथे चढ़ जाए तो वो उस पर प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, वो उसकी ट्रीटमेंट नहीं करते। इंसान ही समझते हैं, वो इंसान उस वक्त समझते हैं जब उसकी डेड बॉडी घर वालों के हवाले करते हैं। हालात ये बने हुए हैं। अब आप देखें, ईद के मुबारक दिन है, बच्चों के लिए कुछ ख़रीदारी करनी पड़ती है। इस मरतबा जो बकरा ईद हमारी है वो सिर्फ ये है कि हमने सिर्फ उधार क्लियर करना है, उसमें ना तो हम कुर्बानी देने के अहल हैं, ना बच्चों के लिए कोई ख़रीदो फरोख्त करने के अहल हैं। मैं आपको अपनी बात सिर्फ इतनी सी बता सकता हूँ कि अभी मेरे साथ चले जाएं, किसी भी दुकानदार से सिर्फ ये कह दें कि रेलवे का एम्प्लॉई हूँ मैं, मुझे कोई चीज़ उधारी दे दे, वो कहेगा हमें आप पे ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट आपके साथ धोखा कर रहा है, तो आप भी तो हमारे साथ धोखा कर सकते हैं। तो आप हमें बताएं कि इस वक्त हमारे मुलाजमीन का पुरसान हाल कौन सा है। ये जगह जगह आपको खड़े जो नज़र आ रहे हैं, ये हमारे IOWs के लोग हैं। वो बेचारे पूरा दिन लगे हुए हैं। जो IOW के निचली सतह के जो लोग हैं ना, जो वर्क करने वाले हैं, वो बेचारे पूरा दिन हमारे साथ लगे हुए हैं, जिनमें जवेद साहब हैं, शानू है और दूसरे तीसरे लोग जो गरीब तबके के हैं, जो हमारे साथ के हैं, वो जो वर्कर हैं, वो प्रॉपरली हमारे साथ दे रहे हैं। लेकिन जो ऊपर बैठे हुए हैं आला अफसरान, वो मस्त होकर बैठे हुए हैं, उन्हें किसी किस्म की परवाह नहीं है कि हमारे क्लास 4 कैटेगरी के साथ क्या हाल गुजर रहा है, किस परेशानी में मुब्तला है। अल्लाह ने रहमत दी, बारिश हुई तो हमारे भी वजूद थोड़े से गीले हुए, लेकिन उसके अलावा अभी भी हमारे घरों में चले जाएं, आपको पानी की एक बूंद नहीं मिलेगी। तो फिर कहाँ से पानी लाते हैं? पानी अब ज़मीन से अल्लाह पाक को रहमत करे, कोई मेहरबानी करे तो हो सकता है। इन जालमों से हमें कोई तवक्को नहीं है। इन्होंने एक काम सीखा हुआ है, ठेकेदार को किस तरह पैसा क्लियर करना है, उसमें से कमीशन किस तरह मारना है, अपने घर का बजट किस तरह कवर करना है। मुलाजमीन को उन्होंने कुछ नहीं देना। इन कैशमेंट के हवाले से, दूसरी कैशमेंट के हवाले से उनके पास बहुत सारे मामलात हैं कि मुलाजमीन की कटिंग किस तरह करनी है, लेकिन बेनिफिट्स मुलाजमीन को देने के हवाले से उनके पास कुछ भी नहीं है। हमारी यूनियन थक चुकी हैं चीख चीख के, जिसमें मेहनत कश है, वर्कर है, लेबर है, प्रेम है, तमाम कैटेगरीज हैं, वो बेचारे चीख चीख के थक चुकी है, जिनमें मेरे प्यारे दोस्त मुबारक साहब भी और दूसरे साथी भी हैं। उन्होंने बहुत सारे बयानात भी जारी किए हैं अखबार के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से, लेकिन ये इतने जालम, मैं जालम तो खैर कम कहूँगा, ऑफिसर हैं हमारे, कि इनको शर्म नाम की कुछ चीज़, जद्दीयत अपनाई और जद्दीयत की इन्होंने इंतहा कर दी, इन्होंने करबला बना दिया। आप तय जी, आप भी यूनियन में ओहदेदार हैं, आप क्या कहते हैं, ये क्या आपके बहुत शुक्रिया आपका, यहाँ पर हमारे मुलाजमीन की आप खबर आगे तक पहुँचाएंगे। यहाँ हम ये कहते हैं कि रेलवे की जगह पर इन्होंने जगह जगह टंकियाँ बना दी हैं और जगह जगह बोर कर दिए हैं, और ये पानी जो है हम रेलवे वालों को नहीं दे रहे हैं, ये प्राइवेट वादियों में दे रहे हैं। तो हम हुकूमत के आगे अपील करते हैं कि फिलहाल ये जो रेल की जगह
टंकियाँ आपने बनाई हैं, रेलवे की ज़मीन है, सब कुछ रेलवे का है, तो हमें पानी क्यों नहीं देते? क्या हम इस पाकिस्तान के शरीफ शहरी नहीं है? हमारा हक नहीं है? या हमें हर सहूलत मिलनी चाहिए? ये हमारा बुनियादी हक है, ये हुकूमत का हक बनता है कि हम लोगों को से पानी और दवा हर चीज़ जो है ना मुहैया करनी चाहिए। स्टेट के ये हमारा बुनियादी हक है। आप बताएं जी, आप भी यूनियन के स्पोक्स पर्सन भी हैं, यहाँ के कॉलोनी को भी हालात देखते हैं, तो क्या समझते हैं ये अभी तक क्यों नहीं आप लोग इसको कर सकते? एक तो सबसे आम तरीन वजह है कि रेलवे के अंदर साजिशी माली बहरान है, जो कहा जा रहा है कि बहरान है, और उसकी सबसे बड़ी, जिसे फेस डेंजर प्रॉब्लम कहते हैं, IMF ये चाहता है कि रेलवे के इदारे को प्राइवेट कर दिया जाए, निजकारी में दे दिया जाए, और एक साजिश हो रही है इस इदारे के ख़िलाफ़, इनके मुलाजमीन के ख़िलाफ़, इन कॉलोनियों के ख़िलाफ़, पेंशनर के ख़िलाफ़, तनख्वाहदार तबके के पास। और एक बहुत बड़ा इशू है, 7400 मुलाजमीन जो नौकरियों से निकाला गया है, वो डिस्चार्ज है, रिमूव है, कॉन्ट्रैक्ट पे है, प्रोजेक्ट पे है, आर्जी है या PM पैकेज पे है। तो आज 7400 मुलाजमीन का केस प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब की टेबल पे है, और मुतासरीन मुलाजमीन कमेटी जिसके चेयरमैन कादर खान मंदूखेल, नवाब शेर अली और मोहतरम किशोर गौर हैं MQM की, और दीगर MNA हैं, उनमें बैठे हैं। उनमें हमारी वर्कर यूनियन तारा निशान भी वहीं पर बैठी है, उसमें दीगर मजदूर तंजीमों का भी बहुत फाल किरदार है। हम वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश करते हैं, एक तो हमारे पेंशनों को FBR को दे दें, 1,27,000 है, अगर वो चले जाते हैं जो आपकी ड्यूटी में है या फाइनेंस मिनिस्ट्री को देते हैं तो उन्हें दे दें, हमारी माली बहरान का सबसे आम मसला हल हो जाएगा। दूसरी बात, उन लोगों को ड्यूटियों पर बहाल करें जिन्हें बेगुनाह तौर पर डिस्चार्ज किया गया है। आज भी PM के पैकेज के मुलाजमीन, कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजमीन, प्रोजेक्ट कैरेज फैक्ट्री के मुलाजमीन, CDL के मुलाजमीन आज भी देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब किधरी जाकर मेहरबानी करें, एक लेटर पे साइन करना है। और कादर खान मंदूखेल ने हर इदारे के मुलाजमीनों को रिलीफ दिया है, हर मिनिस्टर ने मुलाजमीन को रिलीफ दिया है, लेकिन रेलवे वाहिद बदकिस्मत इदारा है जिसके वफाकी वजीर ने उन मुलाजमीन की बहाली में बजाय के कोई अच्छा रोल प्ले करे, उन्होंने रुकावट खड़ी करी है। सियासत से हट कर एक बात कहता हूँ कि अगर रेलवे मुलाजमीन को आपने बहाल किया, पेंशनरों को और रिटायर्ड मुलाजमीन के जो वाजिबात हैं, मेरी बेवा बहनें, मेरी बेटियां और मेरी वो बहनें जो आज भी वाजिबात की अदायगी की वजह से परेशान हैं, रिटायर्ड मुलाजमीन को 2-2 साल 3-3 साल हो गए आप वाजिबात नहीं दे रहे। 2021 में निसार मेमन के साथ मेरी आखिरी मीटिंग थी जब 22/4 को आपने वाजिबात दिए। आज उनके जाने के बाद हमारे रिटायर्ड मुलाजमीन कहते हैं रिटायर्ड हो जाएंगे, पैसा कहाँ से मिलेगा। मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश है, मैं ख्वाजा साहब आपसे गुजारिश इस वजह से नहीं करना चाहता कि हमें मुलाजमों को रेलवे वालों से पहले आपसे इंसाफ की तवक्को थी, लेकिन आप जब से आए हैं रेलवे का बेड़ा बिठाने के बजाय आपने उसका बेड़ा किया है, और उस बेड़ा गर्क करने का सारा साइड इफेक्ट रेलवे मुलाजमीन पर, कॉलोनियों पर, पेंशनों पर, तनख्वाहों पर और रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात पर पड़ा है। लिहाजा इन मसलों को हल करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप अच्छा भट्टी साहब, सारे लोगों की बातें आपने सुन ली हैं। जिस इलाके में ये पानी की टंकियां देख लें, 6 पानी के बड़े बड़े टैंकर बने हुए हैं रेलवे की ज़मीन पे, जो रेलवे के मुलाजमीन को, रेलवे जो लोग रहने वाले हैं इनको पानी नहीं मिलेगा। 8-8 बोर बने हुए हैं लेकिन पानी, ये बड़े शर्म की बात है। स्कूल यहाँ पे मौजूद था, स्कूल ख़त्म कर दिया गया। जाहिर सी बात है, मैं रेलवे की बीट भी करता हूँ और यहाँ पे मेरी बड़ी कड़ी नज़र है, और मुझे शर्म आती है ये बात करते हुए कि रेलवे के बहुत से ऐसे बुज़ुर्ग जो 50-50 साल गुजर चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, तब भी रेल वहीं खड़ी है लेकिन रेल खसारे में है। 100 साल में रिटायर हो चुके हैं, मर चुके हैं, खप चुके हैं, लेकिन रेलवे फिर भी खसारे में है। लेकिन रेलवे कभी भी रेलवे अस्पताल की बात आपको करूं कि वहाँ पे 2-2 इदारे काम कर रहे हैं।
تو مریضوں کے لیے ادویات کوئی نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ ریلوے کی حالت جو ہے سہولیات کوئی نہیں ہے, بہت برے حالات ہیں. تو ان کے لوگوں کے حوالے سے اس وقت کوئی نور ٹی وی جو کر رہا ہے ماشاءاللہ بڑی ایفرٹ کر رہا ہے, تو ان کے داد رسی انتہائی ضروری ہے. خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں ابھی آپ نوٹس لیں ان کے اوپر, نوٹس کیا لیں گے, ابھی انہوں نے آپ کو کہہ دیا کہ جب بھی آپ آتے ہیں عذاب بھی آتے ہیں. گرمیوں میں جب گرمیاں ہوتی ہیں تو پتہ نہیں کون سا ایسا شیر آتا ہے جو پانی پی جاتا ہے. اس دور کی بات کر رہا ہوں, خواجہ سعد رفیق کی بات کرو, اور پتہ نہیں کون سا ایسا شیر ہی آتا ہے جو یہاں کی گیس ساری سونگ جاتا ہے. لوگ سارے پریشان ہیں, پریشانی کا سطح بات بہت ضروری ہے. جی ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. جیسا کہ ہم آپ کو آج بتا رہے تھے, ریلوے کالونی میں موجود تھے. ان کے مسائل سے کہا کہ آپ نے میزبان افتخاری بٹی کو اجازت دے, اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.